बीमारी कोई और लेके आता है, अल्टीमेटली रूट कॉज निकलता है स्ट्रेस। वैद एंड बाबाज बन के वो ऐसे देयर इज दिस थिंग कॉल्ड पुड़ी, वो दी जाती है एंड लोग बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ उसको लेते हैं, उसको खाते हैं, देन दे फील लाइक दे आर ओके। आजकल लोगों में साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं रादर देन एक्चुअल नॉर्मल प्रॉब्लम्स। आज से 22 साल पहले की बात, हम अपनी क्लिनिक में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट्स देख रहे हैं, तो बाहर से रिसेप्शनिस्ट आती है, वो बोलती है जी यश चोपड़ा जी आए हैं। एलर्जी टैबलेट्स दे आर बीइंग यूज्ड फॉर नशा। बहुत सारी डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, लोग एलर्जी की गोलियां खा के साथ में ड्रिंक कर लेते हैं। 22 साल में लड़कों के बाल या तो ग्रे होने शुरू हो गए या तो चले गए हैं। डाइट प्लेज अ मेजर रोल। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड चल रहा है जिसकी वजह से हम अच्छी प्रोटीन रिच डाइट नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है। कमीज और मेल्स दे आर नॉट इफेक्टिव। They don't have that kind of herb in it which is actually required in the body to give results. Can Ayurveda cure allergy forever? Gen Z or Ayurveda, do you think they will ever meet? Because Gen Z is a generation that wants results in days. Ayurveda can take up to months. Now we've started making herbs in the form of extracts, wherein a small tablet will yield more results. Baba Ramdev, who claimed that he has come up with a solution to COVID. It was definitely not clinically evidence-backed thing, but So online कोई recognize कैसे कर सकता है कि ये genuine brand है आयुर्वेदा का और this is something that I should not trust? Ayurveda is such a beautiful part of our ancient history, but it's also getting left behind. There is so much that we as a generation don't know about Ayurveda and why it is so good for us. So today we sit with Dr. Satnam and Dr. Harveen from Arogyam and we try to understand where Ayurveda stands now, what does the future look like, and what's really getting left behind as we focus too much on allopathic medicine advancement. So I am very excited to do this podcast for two reasons. सबसे पहला रीजन तो lot of people don't know this, but my journey in India actually started from Arogyam, and I got back in 2018, and जो digital business तब I think Arogyam was trying to set that Yes, up, yeah. and Dr. Satnam was there, and he was trying to build that Yes, yes. section. तब digital नया नया आया था इंडिया में भी. And it was such a beautiful experience because I learned so much, and Ayurveda, maybe it was my first chance, and also like just working in India. So I am very, very excited to be here today for that reason. And then second is obviously allergy. It is one thing that I struggle with every day, and I'm sure so many people who are watching this podcast are also struggling with that. Up to Dr. Harveen, it's literally to the point where I walk into my threading wala parlor and I tell her, no, today there's going to be nothing, I'm going to be fine. I walk in completely perfect, but the second she starts doing my threading, also that bout of sneezing starts like that. It's really bad. Matlab, I got my operation done a couple of years back, but I just feel like somehow it got better for a few years. It's just gotten back now, and I have no clue why. So I feel like this podcast can be life changing for me, because those who like struggle with allergy, they feel like there's no end to it. Yeah. Kyunki koi, like for example, we get a fever, it ends in 2-3 days, we know we're going to be fine, a couple of dolos and we're okay. Allergy is not like that. It's a little more chronic. It is something that stays with us. It sometimes runs in our history, like, in the family. So we keep like kind of passing it on also, and we don't know what to do with it. So before we get into how Ayurveda can come into the picture, I want to understand one simple thing. Can Ayurveda cure allergy forever? See, Khyati, thank you very much for having us here. Actually, when we talk about allergies, the allergy is a hypersensitivity to our body towards allergens like dust, like many other pollution particles. Our body is hypersensitivity that makes it disease. But actually, what we can do in Ayurveda for allergies, that we can desensitize or decrease the sensitivity of our body towards allergens. When we decrease our body's sensitivity towards allergens, so we are staying in that environment, we don't feel allergies. Like patient जो हमारे मेडिसिन लेते हैं, तो आयुर्वेदिक दवा से वो कई साल तक बिना एलर्जी के ही जीते हैं. मतलब दे फील गुड.
in the presence of even allergy particles. सो आयुर्वेदा, ये कहना कि आयुर्वेदा बिल्कुल ही क्योर कर देता है, ये बात कहनी ठीक नहीं है। लेकिन जहां पे इतना बड़ा मेडिकल वर्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके भी एलर्जी का आज तक एक भी सोल्यूशन नहीं निकाल पाया, तो वहां पे हम डाइट, योगा एंड हर्बल मेडिकेशन के साथ हम पेशेंट्स को कई कई साल तक बिना एलर्जी के उनको हैप्पी लाइफ दे रहे हैं। तो इससे बढ़िया अच्छी बात नहीं हो सकती। सो आयुर्वेदा इज रियली गुड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज, बट नॉट ओनली हर्बल मेडिकेशन। There's a total program, like first diet, we change the diet. Second, we change the lifestyle little bit with yoga and with herbal medication. Three of the things, in a program form, it can really treat allergies very well. So somebody who just takes herbal medication, you think their recovery rate will be way lower than somebody who's taking diet, मतलब taking care of their diet and lifestyle Yes, also. कभी भी ये कहना कि ये एक हर्ब ले लो और आपकी एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो ये कहना This is गलत है। not right. Yes. तो कैसे चेंजेस की बात कर रहे हैं हम डाइट और लाइफस्टाइल में? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर वी टॉकिंग? जो भी डाइट है, जैसे हम खट्टी चीज खा रहे हैं, क्योंकि एलर्जी क्या होती है, हमारी बॉडी में कफ बढ़ जाता है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ दोषास, लाइक वात, पित्त एंड कफ। जो कफ है हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कफ बढ़ता है, तो जो कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं जो कि ऑलरेडी हमारे बॉडी में कफ बढ़ा हुआ है, तो उसको और ज्यादा बढ़ा देती है। ऐसी डाइट्स जो कि कफ को बढ़ाती हैं, उनको हमने कम करना है। नंबर 2, हमने बॉडी में मेटाबॉलिज्म डाउन हुआ होता है एलर्जीज में, लाइक ब्लड सप्लाई जो हमारे नेजल जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको पूरी तरह नहीं मिल रही होती। तो हमने जब योगा करवाते हैं तो पेशेंट में क्या होता है, फुल ब्लड सप्लाई गोज टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, टू द ब्रेन, टू द लंग्स, टू द स्किन। जब पूरा ब्लड सप्लाई वहां पहुंचता है तो उसकी सेंसिटिविटी, जो हाइपर सेंसिटिविटी है, वो कम हो जाती है, इम्यूनो मॉड्यूलेशन हो जाती है, जिससे पेशेंट को एलर्जी पार्टिकल्स जब होते हैं डस्ट की फॉर्म की प्रेजेंस में भी एलर्जी महसूस ही नहीं होती। यानी आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको छोटी मोटी एलर्जी कुछ कह नहीं पाती। एलर्जीज के ट्रीटमेंट में हर्ब्स के साथ साथ हम सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि नाक में आप देसी गाय का देसी घी डालिए। इस पे हमारी जो रिसर्च भी है, तो इसमें होता क्या है, जब हम नाक में घी डालते हैं तो एक परत बन जाती है नाक की झिल्ली के ऊपर, नेजल म्यूकोजा के ऊपर एक परत बन जाती है कि डस्ट पार्टिकल्स या एलर्जी के पार्टिकल जो पहले आके नाक की झिल्ली के साथ टच करते थे, वहां पे एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करते थे, जैसे नेजल इचिंग होगी, स्नीजिंग होगी, तो वहां पे एक घी की लेयर जमी हुई है, जिसकी वजह से वो टच नहीं कर पाते, एलर्जिक रिएक्शन ही नहीं शुरू कर पाते। सो नाक में घी डालना अति उत्तम माना जाता है एलर्जी के So पेशेंट there's one question that I have on this. I remember allergy के लिए I went to an allopathic doctor. मैंने यही पूछा कि should I put that because it's not stopping. उनका clear answer था no. Because आजकल घी में इतनी मिलावट है, it is not, you're not sure if the ghee that you're putting in is right and it doesn't have too much of an impact. Was the answer that I got. देखिए, घी में भी हमने जो रिसर्च पेश की थी, वर्ल्ड वाइड फेमस हुई थी, तो उसमें हमने यही कहा था कि घी जो होना चाहिए वो देसी गाय का देसी घी होना चाहिए। साहिवाल गाय जो पंजाब की, या साहिवाल गाय जो हमारी इंडियन ब्रीड है, इंडिजियस ब्रीड है, उस घी में इतना इफेक्ट होता है कि एक तो वो हैवी नहीं होता, बहुत लाइट लेयर बनाती है। दूसरा, उसमें ऐसे गुण होते हैं कि वो नेजल म्यूकोजा को डिसेंसिटाइज कर देती है। तो आप अगर वो वाला घी, प्योर फॉर्म ऑफ घी जो वो अगर लगाते हैं, तो उसका इफेक्ट जो डिफरेंट होगा। बैफलो का घी नहीं लगा सकते बिकॉज वो भारी होता है, वो जम जाता है, वो ऊपर से और प्रॉब्लम कर सकता है। सो देसी गाय का देसी घी जो इसके लिए इफेक्टिव माना जाता है कि वो एक तो डिसेंसिटाइज कर दिया उसने, दूसरा कांटेक्ट उसका ब्रेक कर दिया अपने एलर्जेंस का नेजल म्यूकोजा के साथ, Right. तो जिससे नाक की झिल्ली जो है वो टच ही नहीं करती, रिएक्शन शुरू नहीं होता, क्योंकि नाक में से ही जो कफ या रेशा बनना शुरू होता है वो जाके गले में गिरता है, फेफड़ों में जाता रिश्ता रहता है, और फेफड़ों में अल्टीमेटली एलर्जिक ब्रोंकाइटिस एंड जो एस्थमा की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो घी डालना ही सबसे उत्तम अभी तक माना गया है। देखो, आयुर्वेद में 5000 साल पहले से ये लिखा हुआ है कि नस्य कर्म हर बंदे को रोज सुबह करना चाहिए। जैसे हम सुबह उठते ब्रश करते हैं, ब्रश करना जरूरी है,
वैसे ही आयुर्वेद में ये लिखा है कि ये सबसे पहला कर्म जो करना हमें हर रोज करना चाहिए। नाक में घी डालना, हमारे एम्ब्लाइकस में हल्का सा तेल लगाना, ये चीजें एक डेली रूटीन रिचुअल माना जाता है। जी। तो इसको हम गलत नहीं कह सकते। सो एक हमें अच्छा सा सोल्यूशन मिल गया आज की, घी लगाने से हमारी एलर्जी कैन गेट बेटर। कोई और ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल में लेके आ सकते जो सबसे इफेक्टिव एलर्जीज में, जिसको अगर आपको किसी को नाक की एलर्जी है, छींकें आती हैं या छाती में सीटी जैसी आवाज आती है, सांस फूलती है, तो सबसे बढ़िया उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम होता है। भस्त्रिका प्राणायाम से फुल ऑक्सीजन, प्रेशर के साथ ऑक्सीजन जो है बॉडी में संचार होता है। खून का संचार बड़ी तेजी से होता है। जहां भी बॉडी के पार्ट्स में ब्लड ऑलरेडी कम है, पहुंच नहीं रहा, वहां पे पूरा जब ब्लड का संचार होगा तो वहां पे वो ऑर्गन्स जो रेस्पिरेटरी मिकोजा है, वो उसमें ब्लड सप्लाई इतनी बढ़ जाती है कि उस ब्लड सप्लाई मींस इम्यूनिटी। जिस ऑर्गन में ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी तो डेफिनेटली वो इम्यून होगा, उसको बैक्टीरिया या एलर्जी के कण कुछ कह नहीं पाएंगे। सो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर पेशेंट भस्त्रिका प्राणायाम भी करता रहे, दवा कुछ भी ना खाए, तो विद इन फ्यू मंथ्स उसकी एलर्जीज बहुत कम हो जाती है। ठीक है। सो एक आसन हो गया योगा का, भस्त्रिका एक प्राणायाम हो गया। ठीक ये है। इससे जो हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है बॉडी का, चुस्ती आती है दिमाग में, जो मेमोरी लॉस जो हुआ होता है एलर्जी की गोलियों से वो कम होता है। नाक की झिल्ली का जो ब्लड सप्लाई बढ़ता है, फेफड़ों में ब्लड सप्लाई बढ़ता है। तो सेकेंडली जो हमारे मसल्स होते हैं, हमारे फेफड़ों में भी मसल्स होते हैं। आप हैरान होंगे कि बाजुओं में तो स्केलेटल मसल्स होते हैं, लंग्स में कौन से मसल होते हैं? लंग्स में स्मूथ मसल्स होते हैं। दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल। दे आर फॉर द मूवमेंट ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, लाइक जो ट्यूब्स हैं फेफड़ों में सांस को अंदर लेके जाती हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द स्मूथ मसल्स। ओके। स्मूथ मसल्स करते हैं। ओके। ये एक्सरसाइज स्मूथ मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर देती है। और हमने देखा है, ट्रस्ट मी, विद इन 1-2-3 मंथ्स ही पेशेंट में ये बिल्कुल एलर्जी की प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि स्मूथ मसल स्ट्रॉन्ग हो गए, तो जो पहले टाइट थी सांस की नलियां, वो अब खुल गई, ऑटोमेटिकली खुली रहती हैं। फिर उनका जो फंक्शन है इंप्रूव हो जाता है। तो डेफिनेटली जो रेस्पिरेटरी एलर्जीज को, सांस फूलने की प्रॉब्लम, वो कम हो जाती है इससे। राइट। सो दो चीजें हमें क्लियर हो गई कि लाइफस्टाइल चेंजेस में एक तो हम ये प्राणायाम करके कर सकते हैं, देन सेकंड हम अपना घी लगाना शुरू नाक करें, में घी लगाना। नाक में घी लगाएं। व्हाट अबाउट डाइट चेंजेस? कोई ऐसी चेंजेस है अपनी डाइट में जो हम कर सकते हैं जिससे एलर्जीज बेटर हो सकती हैं? देखो, आजकल दूध में बहुत प्रॉब्लम है। लाइक दूध आजकल हार्मोन इंजेक्टेड दूध मिल रहा है। दूसरा, लोगों को आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत हो गई है। दूध पीते ही छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। दूध पीना हम बंद करा रहे हैं लोगों को। सेकेंडली, हम ग्लूटेन बंद करा रहे हैं। ग्लूटेन और दूध ऑटोमेटिकली एलर्जी की सेंसिटिविटी को कम कर देता है। जो बॉडी हाइपर सेंसिटिव हुई होती है, नॉर्मल चीजों से भी हाइपर सेंसिटिव होकर छींके मारने शुरू कर देती है। जब हम ग्लूटेन बॉडी में डाउन कर देते हैं, लैक्टोज डाउन कर देते हैं, तो अल्टीमेटली उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। अब ये सिर्फ उनको वर्क करता है उन पे जिनको ग्लूटेन एलर्जी होती है कि किसी भी? सब में काम करता है। ओके। सो यू थिंक ग्लूटेन इज नॉट गुड फॉर अस? Yes, we can say that gluten is not good for us. क्योंकि Okay. हमने देखा है खुद प्रैक्टिकली, क्योंकि हम मेडिसिन से ज्यादा लाइफस्टाइल चेंज करके लोगों को ठीक कर रहे हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो लाइफस्टाइल में ये बहुत बड़ा पार्ट आ रहा है। इसको आप मानोगे, जब हम ग्लूटेन लोगों का कम करते हैं, पीसीओडी भी ठीक होनी शुरू हो रही है। अच्छा। पीसीओडी, पीसीओएस में भी फर्क पड़ना शुरू हो रहा है। पीसीओ मतलब जिनको मान लो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की प्रॉब्लम आ रही है, पेन होती है या आगे पीछे होते हैं, वो बिल्कुल ठीक होने शुरू हो जाते हैं ग्लूटेन ही कम करने से, दूध बंद करने से। ओके। सो वेरी गुड जो कैच है ये। सो कैल्शियम इज वन थिंग जो हमें छोटे होते से सुना हुआ है कि दूध से आता है। अब हम दूध अपने डाइट से बिल्कुल निकाल देंगे। डू यू थिंक देन आवर इंडियन डाइट सपोर्ट कैल्शियम इनफ, कि कोई ऐसी एलिमेंट्स हैं दैट वी नीड टू ऐड इफ वी आर एलिमिनेटिंग दैट? सी, वी कैन ऐड कैल्शियम, बहुत और सारे तरीके हैं, बहुत सारी डाइट्स हैं जिससे हम कैल्शियम ले सकेंगे। दूध
अभी प्रॉब्लम जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, छींकें आती हैं, सांस की प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, उनको अब बंद करना ही पड़ेगा, बिकॉज अभी दूध की हमने सर्वेस भी देखे हैं कि 85% ऑफ जो लोग हैं दूध सही नहीं दे रहे, ओके तो मिलावट वाला दूध बहुत आ रहा है। और दूसरा, इंजेक्टेड तो सब है ही है, हार्मोन इंजेक्टेड तो है ही है, हार्मोन इंजेक्ट किया हुआ दूध, उससे क्या है कि दूध ज्यादा प्रॉफिट बढ़ता है लोगों का। जो ऑर्गेनिक टर्म चला है कि ऑर्गेनिकली ये किया जाता है, A2 मिल्क भी, A2 milk, हाँ yes. जी, सो डू यू थिंक दोज आर एक्चुअली बेटर फॉर्म्स ऑफ मिल्क टू See, इंटेक? जो अभी किसी के पास जाके तो देख नहीं सकते उसके मन में क्या है, क्योंकि हर आदमी आजकल पैसा ही तो कमाना चाहता है, कोई मरे कोई जिए, उसकी जेब भरनी चाहिए, तो किसी पे ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है इस टाइम कि सच में A2 घी मिल रहा है कि हमें कि नहीं मिल रहा, राइट। A2 मिल्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आयुर्वेदा की बात करते हैं, जो मेडिसिनल हर्ब्स आते हैं आयुर्वेदा में। लेट्स टॉक अबाउट दैट। वी नो वी हैव एलोपैथी, देन देयर इज होम्योपैथी, देन देयर इज आयुर्वेदा, these three primarily forms of treatment if somebody gets an illness. How does ayurveda work differently on our bodies versus allopathy? So Ayurveda, it works on the root cause, and allopathy, it works on the symptom, right, or the pathogen. Right. So when allopathy acts on the symptom, it is faster, it gives better results, it can give you results maybe in few hours. But जो हमारा आयुर्वेदा है, it will work on digestion, it will work on agni, it will work on immunity, even your nervous system, and it is a complete package. It might take time to act, but it will work on the root cause. So this is how allopathy and ayurveda are different. I would say it is a trade-off between speed and root cause. So none I can say is better, but both of them are good at their own place. And what is the average time duration that you think if somebody is coming and visiting you, they should have in mind कि नहीं इतना time हमें लगेगा to really cure this problem? So it depends कि आपकी बीमारी जो है वो कितनी पुरानी है. अगर आपने उसको बहुत पुराना कर दिया, then it will take about 4 to 6 months for sure. अगर आप बिल्कुल recent chronic problem के साथ आए हो, तो it will be easier for us to cure. We can give results maybe in 2 to 3 months also. But ऐसा नहीं है कि आपने आज दवाई खाई और कल आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे. ऐसा आयुर्वेदिक मेडिसिन में नहीं होगा. Another thing I've always wondered is that क्या कोई ऐसे illnesses होती हैं that work like in those cases allopathy works better versus Ayurveda? For example, let's talk about allergy. It's a chronic thing, we all know that. So maybe Ayurveda could work much better क्योंकि long term है, but it will solve your problem for good. Versus something like a fever, for example. आज fever हुआ है, obviously would much rather take a Dolo, quick results, and मतलब Ayurveda I think is not the go-to treatment in that case. So like can we bifurcate these diseases in any way कि अच्छा अगर आपको ये diseases है तो you should prefer Ayurveda, and if you have these set of diseases then you should go for allopathy? Yes, अगर आपको भाई acute problem है, जैसे आपने एलर्जी की ही बात की, एलर्जी में मैनिफेस्टेशन क्या है कि आपको कोल्ड है, कफ है, आपको हेडेक हो रही है ना. इसमें भी एक क्रॉनिक कोल्ड है जो आपको चलता रहता है, एक है एक्यूट कोल्ड जो हमें सबको हो जाता है, एक दूसरे से इन्फेक्शंस, वो किसी को भी हो सकता है ना, वायरल जिसको फीवर बोलते हैं वायरल. तो वो एक कोल्ड को ही मैं 2 वेज से बता रही हूँ, एक क्रॉनिक कोल्ड है, एक्यूट कोल्ड है. एक्यूट को वी नीड एलोपैथी, वी नीड क्विक फिक्सेस, वी मे बी नीड एन एंटी एलर्जिक विच विल मेक इट गो अवे इन अ डे और सो. इमरजेंसी में तो हम नहीं रिकमेंड करेंगे कि आप आयुर्वेदा लें. इमरजेंसी में तो एलोपैथी ही बेटर है, क्योंकि राइट हम किसी की लाइफ के साथ खेल नहीं सकते कि इसको हम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो हमें आयुर्वेदिक देना है, तो हमें एलोपैथी में जाना ही पड़ेगा और जाना भी चाहिए. इमरजेंसी है तो सर्जरी है तो उसमें डेफिनेटली एलोपैथी इज बेटर देन आयुर्वेदा. So we can't keep waiting कि ये हम आयुर्वेदा से सही कर देंगे, and we don't do that. हम overclaim करते ही नहीं है आयुर्वेदा में, at least in आरोग्यम we don't overclaim. Yeah, that brings me to my next question. आपने लाइफ से खेलने की बात की. It's great to know, of course, credibility comes from that. But that said, there are so many people who are still in the name of Ayurveda playing with the lives of people. Especially, not all, but so many people who call themselves Ved and Babas बन के वो ऐसे there is this thing called puri, वो दी जाती है, and
लोग बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ उसको लेते हैं, उसको खाते हैं, देन दे फील लाइक दे आर ओके. ऑफ कोर्स वन थिंग इज द प्लेसिबो इफेक्ट भी काम करता होएगा, आई एम श्योर इन देयर, बट still do you think that India somewhere is missing that sense of credibility or some proper checks that are required so that we can actually run this industry also a little better? बिल्कुल आपने ठीक कहा ख्याति, बिकॉज लोग जहाँ पे हम किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है, कोई डिसीज है, ग्रीवियस डिसऑर्डर है, जैसे कैंसर है या कोई भी ब्लड प्रेशर है, शुगर है, पुरानी बीमारी है, तो हम वहां पे आयुर्वेद देते हैं, लेकिन उसका एलोपैथी बंद नहीं कभी करवाते हैं. हम कहते हैं आप एलोपैथी लेते रहो, इकट्ठी दोनों लो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दोनों को इकट्ठा लेने का. Okay. जब हम आपका लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, धीरे धीरे डाइट बदल रहे हैं और आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो धीरे 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 आपकी बॉडी खुद बताएगी कि मैंने ये चीजें छोड़नी है. मींस आपको आपकी बॉडी खुद बताना शुरू करेगी कि मेरे को अब इतनी एलोपैथी की जरूरत नहीं है. तो अगर हम सीधा ही उसका एलोपैथी छुड़वा के बोले कि भाई आयुर्वेद से ठीक करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो ये कहना गलत होता है, इससे उसका नुकसान भी हो सकता है. तो हमेशा, और दूसरा प्लेसिबो इफेक्ट जो आपने बोला, उसका इफेक्ट तो डेफिनेटली है ही है, क्योंकि आजकल लोगों में साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं रादर देन एक्चुअल नॉर्मल प्रॉब्लम्स. साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स में ये कि उनको लगता है कि मेरा प्रॉब्लम है या थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो एग्जैजरेट हुई होती है. Okay. तो उसको मेंटल ब्लॉक बोलते हैं. मेंटल ब्लॉक वो होता है लोगों को. तो उस स्टेज में हम अगर किसी पेशेंट को हौसला दे देते हैं ना, तो उसकी बीमारी सच्ची सच्ची में प्लेसिबो इफेक्ट से ही ठीक हो जाती है. तो हौसला एक बहुत बड़ा आज के टाइम में वो क्यूरेटिव फैक्टर है, बेटर देन इवन मेडिकेशंस. Right. सो पेशेंट को ये बताना कि तो बिल्कुल ठीक हो जाना है, क्योंकि इतने टेंस हुए होते हैं पेशेंट के साथ. हम जब बात करते हैं, बीमारी कोई और लेके आता है, अल्टीमेटली रूट कॉज निकलता है स्ट्रेस. जब हम उससे आधा घंटा बात करते हैं, आयुर्वेद में बेस्ट पार्ट ये है कि हम पेशेंट की हर चीज देखते हैं, उसका मतलब हर पॉइंट उसका, उसको सुनते हैं, उसके बाद में पता लगता है कि ये भाई बंदे को बीमारी है कौन सी. Stress can actually play a big factor in a disease like that as well. Yes. So I just feel like it deserves a lot of our attention and time, but somewhere we don't pay that because हमें लगता है कि जो हमारे सामने अभी वो it's more urgent. A lot of us like don't really look inside our own brains and we forget that जितना कुछ बाहर हो रहा है, it's actually a result of what is going inside of us. Yes. So can we talk about why stress has become such a big part of our day-to-day lives, even in India, in Punjab, अगर हम बात करें तो it is something that everybody is more or less going through. Can we talk about that for a little? सी देयर इज टेक्नोलॉजी जो अभी मोबाइल टेक्नोलॉजी जो आई है, और दूसरा हमारा कंट्री डेवलप कर रहा है. डेवलपिंग स्टेज में हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज हैं. तो लोग इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैस्प करने के लिए बहुत बिजी हैं. किसी के पास दूसरे के लिए टाइम नहीं है. अंदर की बात, दिल की बातें एक दूसरे के साथ खोलते नहीं है. दोस्तों में भी पर्दा रखते हैं. तो इन चीजों की वजह से लोग में घुटन बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रही है, और इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं. इंस्टाग्राम की तरफ देख के हम उनकी तरह बनना चाहते हैं जो हमसे बहुत आगे है. तो वहां तक पहुंचना तो अच्छी एस्पिरेशन रखनी, तो एस्पायर करना तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम वहां तक, हमारी खुद की कैपेसिटी नहीं है इतनी ज्यादा वहां तक पहुंचने की, या बहुत टाइम लगने वाला है, तो वहां हम डेस्परेट हो जाते हैं और स्ट्रेस हमारी बॉडी में शुरू हो जाता है. तो एक तो हम आजकल रिलेशनशिप में, भाई बहनों में, दोस्तों में, रिलेटिव्स के साथ बैठते ही नहीं है. हमारे पास टाइम ही नहीं है क्योंकि हमारे पास काम बहुत है. दूसरा, मोबाइल में बिजी रहते हैं. ये चीजें हमारी बॉडी में अभी स्ट्रेस बहुत दे रही हैं, और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है हमारी. तो दैट इज आई थिंक मेजर इशू जो कि स्ट्रेस को बढ़ा रहा है हमारी. And does Ayurveda or going it down that route help in stress management in any way? यस, वही बात कि अगर हम एक हर्ब से सिंपली किसी का स्ट्रेस बिल्कुल मैनेज करने में कामयाब नहीं हो सकते. हमें तीनों चीजें करनी पड़ेंगी. डाइट भी, योगा भी, और साथ में हर्ब्स भी. तीनों का कॉम्बिनेशन, जो तीनों का प्रोग्राम है, इकट्ठा प्रोग्राम है, वो डेफिनेटली स्ट्रेस को बहुत कम करने में हेल्प कर सकता है. बिकॉज ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है ना. तो अगर हम लाइफस्टाइल पे काम करते हैं तो डेफिनेटली
उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, Right. स्ट्रेस कम होगा ही होगा। Right. अब एलोपैथी में देख लें तो स्ट्रेस के लिए कुछ भी नहीं है, Hmm. क्योंकि एल्प्रेक्स लोग आपको पता है कि बहुत ज्यादा खाते हैं, Right. है ना? हाँ जी। एल्प्रेक्स खाते हैं तो आप उसका अगर आप गूगल पे सर्च करें, Hmm. उसका लिटरेचर पढ़ें तो एल्प्रेक्स खुद ही एंजाइटी क्रिएट करती है। Oh, अगर आप really? महीना 2 महीने लेते रहें Hmm. तो इससे डिप्रेशन हो सकता है, होता है, हो नहीं सकता, होता है। तो अभी साइकेट्रिस्ट ने एल्प्रेक्स को ऑलमोस्ट लिखना बंद कर दिया है और बैन हो गई है मेडिसिन। उसकी जगह पे और मेडिसिन लिखी जा रही है, लेकिन ये सारी की सारी दवाएं जो दिमाग को स्लो कर देती हैं, जिससे इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाता है। तो आयुर्वेदा में कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि एक एल्प्रेक्स अश्वगंधा का? हर्ब है, अश्वगंधा है जिसपे बहुत रिसर्च हुई है, एविडेंस बेस इसका फैक्ट मिला है कि दिस इज एंजियोलिटिक। इससे पेशेंट्स में एंजाइटी कम होती है, ओके। टेंशन कम होती है, एवरीडे स्ट्रेस जो हम रोज झेलते हैं, जो दिमाग में धीरे धीरे इकट्ठी होती रहती है ना, वो उसको ये कम करती है। तो जब वो कम होती है तो वो इकट्ठी बाद में जो स्ट्रेस है वो बाद में एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप नहीं लेती या डिप्रेशन का रूप नहीं लेती। तो डे टू डे लाइफ में इसका इफेक्ट जो अश्वगंधा इसलिए बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई है। यूएस में बिलियंस एंड ट्रिलियंस में इसकी जो मार्केट साइज है, मतलब लोग ले रहे हैं इसकी। क्या क्या बेनिफिट्स हैं अश्वगंधा के? अश्वगंधा देखो, मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ अपने घर में। जब मैं छोटा था मेरे को नहीं पता था कि अश्वगंधा क्या है, तो हम अपने नाना जी को देखते थे कि वो रूट्स, जड़ें रूट्स होती हैं, उनको पीस के ना दवाई बनाते थे। तो हम देखते थे वो एक रोज पुड़ी लेते थे उसकी, वो अश्वगंधा था। और मानते हो 100 साल की उम्र के बाद नाना जी गए हैं और उन्होंने आज तक कभी बीपी की दवाई नहीं खाई। वाओ। हाँ, उसके अलावा वो सुबह जल्दी उठते थे, मॉडरेशन में जीते थे, खाना भी मॉडरेट खाते थे, तो काम भी करते थे। ये चीजें भी फैक्टर रहे हैं। लेकिन अश्वगंधा जो 100 साल के बाद तक भी खाई है जब तक वो जिए। वाओ। तो अश्वगंधा के 3 इफेक्ट है सबसे बड़े। एक तो स्ट्रेस कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दिमाग में जो इकट्ठी होती रहती है बिकॉज ऑफ केमिकल्स इन आवर बॉडी, हम केमिकल्स खाते हैं, उसको कम करता है। स्ट्रेस लेवल जो इससे डेफिनेटली कम होता है, ये तो प्रूव भी हो गया। तो दूसरा, ये फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन को ये बहुत स्टिमुलेट करता है, जिनमें आफ्टर 40 टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, तो ये उसको लेवल को अप करता है, मसल डेवलप करने में हेल्प करता है। अश्वगंधा इज बेसिकली ये एक वो है, बून है, मतलब बॉडी की मजबूती, स्ट्रेंथ के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक द मोर वी इसको हम आयुर्वेदा में मिरेकलस हर्ब कह सकते हैं, अश्वगंधा को। Yes. आई थिंक वही, जितना हम अपने रूट्स की तरफ देखते हैं, वी रियलाइज दैट दीज वर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, बट समवेयर एज आई थिंक द यंगर जनरेशन केम इन, ऑफ कोर्स वी आर, आई हेट टू एडमिट इट, बट हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत इम्पेशेंट है एज अ जनरेशन। आयुर्वेदा टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ लाइक पेशेंस विच वी डोंट हैव, सो कहीं ना कहीं इट इज नॉट द गो टू रूट फॉर अस ऑल्सो। बट that said, जैसे side effects नहीं है इसके, and that is one thing that should be sold on like quite a lot, and I would love to get deeper into this conversation itself. But before we do, Gen Z or Ayurveda, do you think they will ever meet? Because Gen Z is a generation that wants results in days. Ayurveda can take up to months, as you said. Do you think they'll ever meet? Gen Zs, they definitely want result very soon, and they do not want to take the medicine the way it is in Ayurveda, because then it can be bitter, the herbs can be bitter, but then they want to take it in a patch, or they want it in the form of a melt, or they want it in the form of a jelly. So jellies cannot have that quantity of herb which is actually required in the body. It will have more of sugar but less of herb. Same is the case with patch. You can apply a patch on small area, but then it will not, the exact amount of herb which is required will not get absorbed through that small patch. Melt will not have that kind of medicine in it which is Right. actually required. Right. So they have to accept it. But yes, they do not want to take it in that form, but they eventually they will start taking it, because when they will not find results anywhere else, they will
because it is definitely a better way of taking medicines. Ayurvedic medicines, if you start taking Ayurvedic medicines in the beginning only, then you will not have side effects which allopathic medicines can give later on. I don't say all, but if not monitored, if taken in a large quantity, they might give some side effects. So it is always better to have Ayurveda, and that too in the form of herbs. And now we've started making herbs in the form of extracts, wherein a small tablet will yield more results, but then that is the actual extract of a pure herb. Okay. So, but then this is the difference. पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है? You're saying you've moved पहले on to herb an होती थी, extract. हम हाँ. एक herb दे रहे हैं, सपोज एक Right. herb है, जैसे अश्वगंधा ही है सपोज, अगर हमारी बॉडी में 250 mg ऑफ अश्वगंधा चाहिए सपोज सुबह, तो हम अब 250 mg की herb जो है वो स्मॉलर टेबलेट में दे सकते हैं, जिसमें जो अश्वगंधा का जो रियल बॉडी में जो यूज होने वाला पार्ट है वो 250 mg एक्चुअली में होगा इन अ वेरी स्मॉल टेबलेट. Right, right, right. So it ठीक is है. the extract, the ठीक main है. thing out of ashwagandha or Okay, tagar okay. or chitrakharitki, whatever we are giving, now Right. we are adding in the form of extracts. So I think it should make better sense Better. to So, Gen Zs. yeah, exactly. I think that's also an advancement in Ayurveda. Yeah, I think but that's जेंसिस जो easier है ना to अभी intake. रेवोल्यूशन आ रही है इसके लिए, Hmm. क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है हर्बल एंड मेडिकल इंडस्ट्रीज जो उनके लिए उनके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं जो वो एक्सेप्ट कर सके, जैसे पैकेजिंग सुंदर होनी चाहिए, या थोड़ी क्वांटिटी में उनको ज्यादा रिजल्ट, जैसे हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, एक्सट्रैक्ट्स का रिजल्ट थोड़ी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, अदरवाइज हमें पुणे में इतनी दवाई खानी पड़ती है. हाँ, पहले जेंसिस से को yes. जब रिजल्ट मिलता है तो वो अब जैसे फूड्स हैं, कुछ जैसे बिस्किट्स अश्वगंधा के हैं, ऐसी चीजें जो डे टू डे रूटीन में हम यूज करते हैं, उनकी फॉर्म में वो बड़ी आसानी से सेट कर रहे हैं. तो ये जो गमीज और मेल्स की हमने बात की और पैचेस की, they are not effective, you're saying? They don't have that kind of herb in it, which is actually required in the body to give results. Okay. So can you do that? I think that would be a great. अगर आप ये gummies के way में ही उनको you bring in that herb part also, because again it's clear you only said कि Gen Z wants that form of, Yeah. you know, वो possible नहीं है कि वो herb उसी form में दिया जा सके. उसी फॉर्म में वही मैं बोल रही हूँ कि अगर हम वो हर्ब को देते हैं तो वो हम जितनी हर्ब बॉडी में चाहिए उतनी नहीं दे सकते. वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, बट वी आर नॉट एबल टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ रिजल्ट विच मार्केट इज गिविंग. एक्चुअली इट्स जस्ट अ पैच और अ मेल्ट विच डज नॉट हैव दैट amount of herb which is required for results. And it cannot be added to that thing No, also. it cannot Not- be. वो placebo So it's effect more कोई- of sugar. It's more of sugar, less of right. herb. Right, right. तो वो प्लेसिबो इफेक्ट कहीं ना कहीं काम कर रहा है उनमें. जो गमी में अगर हर्ब पूरी नहीं डली, देखो एक कोई भी मेडिसिन या हर्ब है उसको मिनिमम क्वांटिटी ऑफ हर्ब इज रिक्वायर्ड टू गिव इट्स इनिशियल इफेक्ट. Yes. Right. तो हर्ब अगर बहुत थोड़ी डाल रहे हैं, गमी में नहीं जा रही, तो प्लेसिबो इफेक्ट से उसको Yeah. इफेक्ट हो रहा है, किसी अदरवाइज को इसका लगता है इतना कि ज्यादा. मैं अश्वगंधा का पैच लगाया है, मैंने तगर का मेल्ट रख लिया, मैंने चित्रखरीदकी का मेल्ट रख लिया, तो आई विल बी बेटर, बट इट वोंट यील्ड रिजल्ट्स. So we are like in Arogyam, we are working in a typical authentic way because we are clinic based companies. We are a clinic based organization. So हम लोग we are not over claiming or selling anything here. But there are big companies in Ayurveda who have also ended up over claiming. I Like, know. for example, Baba Ramdev ji, there was COVID came and the whole world was trying to come up with a vaccine. वो जो आई भी उसमें भी we didn't have 100% confidence. We heard after that so many people had side effects and everything. But meanwhile, there was Baba Ramdev who claimed that he has come up with a solution to COVID called Coronil. ये herbal kits Coronil की बेची गई थी तब, and the bigger thing is that people believed him. Lakhs of people believed when he said he had a cure to COVID, a disease that had just come up and like required years of research to genuinely come up with a scientifically medicine. But he claimed Ayurveda had that and he had that. One, why do you think so many people believed him? And then second, was that revelation or that claim well founded or not? So Baba Ramdev ji is
I think the biggest influencer, advocator of Ayurveda. He spread the word of Ayurveda all through the world. Everybody is doing yoga, following Ayurveda, all thanks to him. But जैसे कोविड वाले टाइम्स आते हैं जब आपके पास बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स नहीं है एंड फियर, पूरा ओवरवेलमिंग फियर है आसपास, तो अगर ऑल्टरनेटिव्स नहीं भी हैं, पीपल कम अप विद थिंग्स, बट इट डेफिनेटली वाज एन ओवरक्लेम. It did not have any legal backing, any clinical evidence or any backing. But then we do not do that in Arogyam Ayurveda, so I cannot say anything about it. But it was definitely not a clinically evidence backed thing. But when there is nothing else to choose, it was definitely a good Ayurvedic product. It must have helped in immunity. If not Curing it, yeah, if not curing it, or if not अगर आप उसको एक वैक्सीनेशन की तरह नहीं भी पोर्ट्रे करते, तो वो एक डेफिनेटली बहुत अच्छी मेडिसिन थी. Fair. And since we were talking about Gen Z, coming back to that, Gen Z के लिए hangover medicines हैं Ayurveda में. Is there anything that they can take as a hangover medicine that doesn't have any side effects? See, there are few herbs like भुई आंवला, कुटकी, कालमेघ. ये तीनों herbs जो हैं लिवर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है. लिवर का जो डिटॉक्स पैथवेज है उसको स्ट्रेंथन करती है. यानी जब हम रिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट रिहाइड्रेशन के लिए जो उसको स्ट्रेंथन करेंगी, तो डेफिनेटली अगर रात को ड्रिंक करी है तो हैंगओवर कम होगा ही होगा. तो ये वाली हर्ब्स हम देके हैंगओवर को तो कम कर सकते हैं, बट हम अल्कोहल का जो डैमेज है बॉडी पे उसको कम नहीं कर सकते. सो अल्कोहल अगर नुकसान करती है तो नुकसान करती है, उसको ठीक नहीं कर सकते. डेफिनेटली इसका जो सुबह हैंगओवर नहीं होगा वो तो हम कर सकते हैं इन हर्ब्स के साथ. इसका इफेक्ट है. अच्छा, एलर्जी टैबलेट्स जो है ऐसा भी सुना जाता है दे आर बीइंग यूज्ड फॉर नशा. पंजाब में एनीवे ड्रग इज अ बिग प्रॉब्लम, ड्रग अब्यूज इज अ बिग प्रॉब्लम इन पंजाब, एंड एलर्जी टैबलेट्स इज एन ईजी वे. You can get it over the counter, and people are using it. उसमें एक in like for example Monte LC, I remember taking that and being, Yes. I think you were the one who told me for the first time कि that my days were so like I was so dizzy throughout the day, drowsy, and I had no idea it was because of the medicine. I thought there was something else going on, but the day I stopped taking it, my life changed. Then I moved to Allegra, and Allegra I think doesn't have that drowsiness effect. Yeah. But people are actually taking it for that nasha primarily, so that they remain in that phase. ये जो एलर्जी वाली टैबलेट्स नशा तो देती हैं बहुत ज्यादा. ये प्रोमिनेंट कब ज्यादा हुआ है हमारे इंडिया में जब से एल्प्रेक्स और एल्प्राजोलम को बैन किया गया है. यानी वो थोड़ी मुश्किल हो गई, अब लोगों को नहीं मिल रही. तो वो एलर्जी की टैबलेट्स मॉन्टेर एलसी जैसे सूडोफेड्रिन है, क्लोरफेनाइजमिन मैलिएट है, इनका सहारा ले रहे हैं. उसमें नशा बहुत ज्यादा होता है. तो पूरे इंडिया में ये अब बहुत ज्यादा, मतलब गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा नशा होता है ना, इवन एल्प्रेक्स से भी ज्यादा नशा होता है. Especially ये- people are taking it with alcohol also. बहुत सारी डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं कि लोग एलर्जी की गोलियां खा के साथ में ड्रिंक कर लेते हैं, तो जिससे जो डेथ्स जो बहुत सारी रिपोर्ट हुई है. अभी आपने न्यूज सुना होगा, शेख कोई अरब शेख है, वो लंदन में उसकी डेथ हुई है क्योंकि उसने एलर्जी की गोलियां खाई हुई थी, साथ में उसने शराब बहुत पी हुई थी, नींद की गोलियां भी साथ में खाई हुई थी. Okay. सो उसकी यंग बंदे की डेथ हो गई उससे. कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं that are most commonly taken for this? मोंटेलुकास बहुत लोग लेते हैं, मोंटेर एलसी लेते हैं, सेट्रोजिन लेते हैं, सूडोफेड्रिन है वो लेते हैं, सियोमोल प्लस लेते हैं, सिनारेस्ट लेते हैं. Right. Monter FX करके भी कोई new medicine आई that doesn't have this drowsiness. नहीं है तो उनमें सब में है ही है, Still थोड़ा कम Allegra होता वाला होगा. salt उसमें साथ में हो गया ना, Montelukast के. Okay. So इस चीज में दिस इज बेसिकली अ बिग क्राइसिस, एंड इसमें सबसे पहले अवेयर कौन किसको होना चाहिए, वो तो एक है केमिस्ट जो दे रहा है ये सारी, और दूसरा फैमिली मेंबर्स हु शुड नो कि ये हमारा बच्चा या हमारा घर का बंदा ये बहुत ज्यादा एंटी एलर्जिक्स ले रहा है जितने रिक्वायर्ड भी नहीं है. सो दे कैन जस्ट मॉनिटर दिस थिंग. हाईली एडिक्टिव. तो
ये जितने भी हम नशे की दवाइयां लेते हैं ना, Hmm. बचपन में या यंग एज में शौक शौक में बच्चे नशा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो बच्चे इमोशनली सेंसिटिव होते हैं Hmm. उनमें इनकी लत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एडिक्ट हो जाते हैं अल्टीमेटली, और Hmm. बाद में फिर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। Hmm. तो इमोशनली सेंसिटिव जो पेशेंट्स हैं या बच्चे हैं, उनको बिल्कुल भी कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, फन के लिए भी नहीं करना चाहिए, Hmm. क्योंकि वो इमोशनली सेंसिटिव हैं, उनको थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा खुशी में भी उनको नशा चाहिए। Hmm. तो उनके धीरे धीरे ब्रेन सेल्स इतने वीक हो जाते हैं कि वो कुछ भी चीज को फेस करने से पहले फेस नहीं कर पाते। Hmm. थोड़ा सा दुख हुआ तो फेस ही नहीं कर पाना, उनको आदत पड़ जाती है ब्रेन सेल्स को छुप के रहने की। Hmm. फेस करना उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो इमोशनली सेंसिटिव बच्चे हैं ना, जो Hmm. इमोशनली स्ट्रांग बच्चे हैं जो, Hmm. वो अगर यंग एज में अगर ड्रिंक शुरू करते हैं तो एक दो ड्रिंक करके बस कर देंगे। इमोशनली सेंसिटिव ज्यादा है तो वो एक दो से कुछ नहीं बनता, उनको और ज्यादा चाहिए। Hmm. सो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राइट। एक यंगस्टर्स के लिए एक और चीज़ बहुत कॉमन हो गई है इवन इन पंजाब इज देयर हेयर, देयर डिसअपियरिंग। 22 साल में यू विल सी कि लड़कों के बाल या तो ग्रे होने शुरू हो गए या तो चले गए हैं। ये वन अगेन, व्हाई इज इट हैपनिंग? आई थिंक डाइट, लाइफस्टाइल आर ऑफ कोर्स बिग फैक्टर्स, बट सेकंड आयुर्वेदा में इसका कोई क्योर या कोई ट्रीटमेंट है? बिकॉज इवेंचुअली तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट इज एन एक्सट्रीम ऑप्शन दैट देन यू हैव। सो अगेन यहाँ पे डाइट पहले मेजर रोल, जो आप बोल ही रहे हो, डाइट प्लेज अ मेजर रोल। बहुत ज्यादा फास्ट फूड चल रहा है जिसकी वजह से हम अच्छी प्रोटीन रिच डाइट नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है। सेकेंड इज कि हम लोग बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स ले रहे हैं मसल्स बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडीज वीक हो रही हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है। स्ट्रेस बच्चों में बहुत ज्यादा है आजकल, यंगस्टर्स में, इसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है। दूसरा है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू लाइक बॉल्डनेस, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, बट अदरवाइज ये जो रीजंस हैं जिसमें हमारा जो आजकल लाइफस्टाइल हो गया उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छी ऐसी हर्ब्स हैं जिनके लोकल एप्लीकेशंस या डाइट में इंक्लूड करने से वी कैन गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। बट यस, पंजाब में या ऑल ओवर इंडिया ही, बिकॉज इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है कि बॉल्डनेस बहुत कॉमन है। इवन सारे कॉलेजेस में आजकल देख लो, कॉलेजेस के बच्चे भी हाफ ऑफ देम आर बॉल्ड। Right, right. Even PCOD and PCOS is one thing that in women has become very, very common. जो पहले शायद इतना नहीं था, it was rare to hear, but अब of late it has become, I think awareness definitely has also increased, but at the same time also, otherwise other factors have contributed to making this such a common disease. So can Ayurveda cure PCOD and PCOS completely, or it can only manage it? It can only manage it, and एलोपैथी एंड आयुर्वेदा दोनों ही इसको कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसको हम मैनेज बेस्ट वे से कर सकते हैं। बेस्ट वे से क्या है कि इसमें हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्बेंस रहती है, हमारे सिस्ट बनते हैं और हमारे वेट गेन हो जाता है, ओवरीज में सिस्ट बनते हैं। सो ये एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता है, इसकी वजह से हमारा वेट गेन भी हो जाता है। अगर वेट गेन हो गया तो पीसीओएस एंड पीसीओडी वैसे ही ठीक नहीं होता। सो वी कैन स्टार्ट बाय टेकिंग सम वेरी गुड हर्ब्स लाइक शतावरी, लाइक अशोका। ऐसी हर्ब्स लेके पहले हम अपना गायनोकोलॉजिकल रीसेट हम अपने पेशेंट्स का कराते हैं। जब वो रीसेट हो गया देन दे कैन स्विच ओवर टू टेकिंग हेल्दी डाइट, बिकॉज गायनोकोलॉजिकल रीसेट हुआ इन हर्ब्स के साथ। हेल्दी डाइट जिसमें हमें वार्म कुक्ड होममेड फूड, नॉन प्रोसेस्ड फूड, ऐसी चीजों पे एक फीमेल को बोला जाता है कि आप स्विच ओवर हो। दूध तो बिल्कुल पीना ही नहीं है बिकॉज वो सारा इंजेक्शन से लगा हुआ दूध आ रहा है, ठीक है। तो जब वो ऐसे फूड्स में स्विच ओवर होते हैं उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। वेट लॉस और गायनेकोलॉजिकल रीसेट से ये जो मेदो रोग है जो आयुर्वेदा के हिसाब से उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। You have to manage it by taking some good herbs and working on weight loss, physical exercise and all. But it can be managed by both allopathy and Ayurveda, not a Together. complete cure. हमारे मेडिकल वर्ल्ड में चाहे होम्योपैथी है चाहे आयुर्वेदा है, हम ये कभी नहीं कह सकते कि हम जो 100% इसको क्योर कर सकते हैं या 90% क्योर कर सकते हैं। ये वर्ड मेडिकल वर्ड के लिए नहीं है मेडिकल थेरेपीज में, बिकॉज ये हर बंदे की बॉडी अलग अलग है, रिजल्ट्स भी अलग अलग आते हैं। वो कैसे
लाइफस्टाइल चेंज करता है अपनी, वो भी अलग अलग है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हम जहाँ एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो आप कभी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए होगे, वो आपको सिर्फ मेडिसिन ही लिख के देते हैं। तो क्या है कि ये सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, थायराइड, पीसीओडी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ओबेसिटी, माइग्रेन, इवन ऑल दिस डिसीजेज, 99% डिसीजेज जो जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं या हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ये सारी की सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आप जितना लाइफस्टाइल चेंज करते जाओगे, आपकी डिसीज क्योर नहीं, रिवर्स होती जाएगी। ओके। देखिए, अगर शुगर है किसी बंदे को 100%, अगर मैं 95-95% उसकी शुगर कम हो जाए, रिवर्स हो जाए, 5% रह जाएगी। 5% कुछ भी नहीं होती। 200 साल बंदा 100 साल भी आराम से जी सकता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। तो हम रिवर्स करने की बात करें रादर देन, जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, ये 15 दिन लो जी आपकी शुगर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, या ये दवाई लेंगे हम आपको, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो वैद्यास बोलते हैं, पहले इनको व्यूज बहुत अच्छे मिलते हैं, हमने देखो अगर बाद में व्यूज बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इतना झूठ बोल चुके होते हैं। जब हम झूठ बोल के किसी को ल्योर करते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, जब उनको अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर वो उसको छोड़ देते हैं। सो ऑनलाइन कोई रिकॉग्नाइज कैसे कर सकता है कि ये जेन्युइन ब्रांड है आयुर्वेदा का, और दिस इज समथिंग दैट आई शुड नॉट ट्रस्ट? कोई ऐसे रेड फ्लैग्स? सी बाय सीइंग देयर रिव्यूज, आप उनके रिव्यूज देख सकते हैं, कंप्लेंट्स देख सकते हैं, जीएमपी सर्टिफिकेशन देख सकते हैं, सर्टिफिकेट्स, आयुष लाइसेंस देख सकते हैं। आप ये देख वो सकते बहुत हैं ज्यादा कोई- क्लेम ना करता हो बंदा, जो बंदा बहुत ज्यादा क्लेम करता है उसको पैसे कमाने की बहुत जल्दी है, वो जल्दी जल्दी पैसे कमाना चाहता है और जल्दी जल्दी लोगों को झूठ बोल के ज्यादा पेशेंट खींचता है, और अगर तो ये गलत चीज है। तो आप सबसे बढ़िया एक और है, वो है लैब टेस्ट रिपोर्ट। हम अपने प्रोडक्ट्स की हर बैच की लैब टेस्ट करते हैं। लैब टेस्ट रिपोर्ट्स में ये पता लग जाता है इसमें कोई जैसे कोई मेटल तो नहीं है, ये प्योर है प्रोडक्ट, इसमें मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं है, हर तरह की उसमें चीज आ जाती है। सो ये लैब टेस्ट कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? डू यू पुट नहीं, देम, ये हम यू हैव इट फॉर योरसेल्फ? अपना जो प्रोडक्ट्स हैं, एक बैच बन के आया है, उसमें से एक रैंडम प्रोडक्ट्स उसमें से देके उसकी लैब टेस्ट करवाते हैं। ओके। उसमें ठीक है, मेटल तो नहीं है या कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, सारा कुछ टेस्ट करके फिर हम आगे बेचते हैं उसको, राइट। और पेशेंट्स को भेजते भी हैं वो लैब टेस्ट रिपोर्ट। और अगर कोई आयुर्वेदिक कंपनी से आप कोई प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, अगर वो क्लिनिकली बैक्ड है, उनके अपने क्लिनिक्स हैं, तो दैट मीन्स उस प्रोडक्ट पे बहुत काम हुआ है, डॉक्टर्स उसके बिहाइंड है, सो मोस्ट प्रॉब्ली वो एक अच्छा प्रोडक्ट ही होगा अगर वो क्लिनिकली बैक्ड है। राइट। जो डॉक्टर खुद 100 पेशेंट 200 पेशेंट की ओपीडी में से रिजल्ट्स निकाल रहा है, उनको मेडिसिन देके, उनका लाइफस्टाइल चेंज करके कि ये मैंने किया तो इसका ये रिजल्ट आया, पेशेंट को इतना फर्क पड़ा, तो वो इन्फ्लुएंसेस या कंक्लूजन्स हमारे पास ज्यादा होते हैं डॉक्टर्स के पास। तो उनको फिर अगर हम प्रोडक्ट्स में अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली वो अच्छा प्रोडक्ट बनता है, उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। सो देयर आर सो मेनी कंपनीज जो आजकल आ रही हैं, दे कम अप विद प्रोडक्ट्स किसी रैंडम मैन्युफैक्चरर से उठाए, मैन्युफैक्चरर कैसा है, आयुष सर्टिफाइड है, जीएमपी सर्टिफाइड है या नहीं है, बहुत अच्छी मार्केटिंग की, दे सेल थ्रू लाइक false claims and all, and wind up किया, कंपनी को आगे रीसेल किया, and then they are like Funding gone ली, forever, basic funding funding ली, and then they are gone forever. Wow. So this You've is what seen is these happening. cases Yeah, happening this up is close. happening. Like Yeah. you can see all those companies everywhere. So last we started our practice in 1999, तो तब से लेके अब तक सबसे आई थिंक वी वर सबसे पहले थे हमने, जब आयुर्वेदिक डॉक्टर थे ही नहीं, थे इतने फेमस हुआ ही नहीं था। तो तब से लेके अब तक देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं। इतने सालों में सबसे मूविंग स्टोरी या कोई पेशेंट स्टोरी दैट यू हैव इन योर हार्ट दैट रियली टच्ड यू, एनी इमोशनल स्टोरीज यू वांट टू शेयर विद अस? या हमारे आरोग्य में बहुत सारे अलग अलग तरह के पेशेंट्स आते हैं, बट कुछ स्टोरीज बहुत मूविंग होती हैं। जैसे हमारे पास थोड़ी देर पहले एक मानसा का लड़का आया, वो ही वॉज अराउंड 14 ईयर्स ओल्ड, बट वो दिखता 9 ईयर्स का था अभी। उसकी पूरी बॉडी पे सोरियासिस था, उसका एक भी बॉडी का पार्ट जो था वो
स्किन शो नहीं हो रही थी, इट वाज कम्प्लीटली। एंड जैसे वो स्टूल पे बैठता था हमारे पास, तो उसके आसपास सारे फ्लेक्स, सोरियासिस के फ्लेक्स जमीन पे भी इकट्ठे हो रहे थे। तो हमने पहले उसको ट्रीट करना शुरू किया, समझना शुरू किया, हमने उसकी ग्लूटन विड्रॉ की, उसको मेडिसिन देनी शुरू की, आयुर्वेदिक हर्ब्स। तो द बेस्ट पार्ट इज कि उसका सोरियासिस तो ठीक हुआ, बट उसकी प्यूबर्टी जो शूट हुई, 14 इयर्स का बच्चा, ही शुड लुक लाइक अ 14 इयर्स ओल्ड, वो हमारे पास ट्रीटमेंट कराते कराते इतना लंबा हो गया, टॉल हुआ, एंड उसका सोरियासिस बिल्कुल क्लियर हुआ। हमारे सामने वो एक छोटी सी हाइट के बच्चे से एक जवान लड़का लगने लग गया। इट वाज सच अ नाइस थिंग टू सी। फिर एक हमारे पास एक यंग बॉय, वो भी सोरियासिस का ही था, एंड ही वाज टू फ्लाई टू कनाडा, एंड उसका सोरियासिस सोरियाटिक आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो गया था, जिसकी वजह से वो स्ट्रूप करके आया था हमारे पास। तो वो जब हमारे पास आया, तो वी स्टार्टेड ट्रीटिंग हिम, लाइफस्टाइल, डाइट, काउंसलिंग, एवरीथिंग। सो उसके भी बॉडी का कोई भी पार्ट विजिबल नहीं था, और उसको ये था कि मैंने 6 मंथ्स में जाना है, आई वांट टू बी फाइन, मैं इतनी दवाइयां कैसे लेके जाऊंगा। तो वो भी बिल्कुल ठीक हुआ। पहले उसका पोस्चर इरेक्ट हुआ, फिर उसके सारे स्किन से सोरियासिस गया। ऐसी स्टोरीज मतलब आपको क्लिनिक में ही नजर आती हैं, एंड दीज आर सच गुड स्टोरीज टू सी। आपको अपने आप पे अच्छा लगता है, यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। राइट देन ऑन आयुर्वेदा ऑल्सो, राइट एक हमारे पास एलपीयू जलंधर के ही प्रोफेसर आते हैं, उनका क्योंकि उन्होंने लेक्चर देना है, तो जब वो लेक्चर देते हैं तो ह्यूमिड और रेनी सीजन में वो बोल ही नहीं पाते, क्योंकि इतना फ्लेगम और म्यूकस उनके गले में इकट्ठा हो जाता है। तो हमारे पास ट्रीटमेंट कराते कराते ही बिकेम ओके नाउ। उसके बाद ये सेकंड रेनी सीजन आया, तो वो ही केम टू अस टू टेल अस कि ही इज एब्सोल्युटली फाइन। सो एक और जैसे देयर वाज दिस मतलब सरदार जी हमारे क्लिनिक में आए, वो कहते कि मेरे स्कैल्प के ऊपर पूरा सोरियासिस है, पर मैंने अपने बाल नहीं कटवाने हैं, बट मेरा स्कैल्प आपने सही करना है, बिकॉज मैं जिसके पास जाता हूँ इतना वर्स्ट फॉर्म ऑफ सोरियासिस है कि मुझे इसको क्लियर करना है, बट बाल नहीं कटवाने हैं मैंने। तो विच इज फाइन, रिलीजियस सेंटिमेंटल वैल्यूज हैं उसकी। तो फिर हमने उसका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, एंड ही इज एब्सोल्युटली फाइन, ही इज एबल टू टाई हिज टर्बन एंड ऑल। That's सो ऐसी amazing. स्टोरीज आर नाइस। Any celebrities that you've treated so far in Punjab? सी पिछले 5 से 10 साल में तो बहुत सारे कॉमेडियन सेलिब्रिटीज ट्रीटमेंट करे हैं, आते हैं हमारे पास। तो क्योंकि हम इंडिया में एज एलर्जी स्पेशलिस्ट ही ज्यादा माने जाते हैं, तो बहुत सारे कॉमेडियंस आते हैं। अभी निर्मल ऋषि, पंजाबी एक्ट्रेस, हमारे पेशेंट, उनको प्रॉब्लम थी थोड़ी, तो रुपिंदर रूपी हैं, वो आते थे। आज से आई थिंक 22 साल पहले की बात है। हम अपनी क्लिनिक में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट्स देख रहे हैं, तो बाहर से रिसेप्शनिस्ट आती है, वो बोलती है जी यश चोपड़ा जी आए हैं बाहर। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, वेट कर लेने दो। हमें नहीं पता था कि हमारे पास इतने बड़ा बंदा भी कोई आ सकता है ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि जलंधर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद जब वो अंदर आते हैं, तो हम तो हैरान हो गए कि ये यश चोपड़ा जी हैं। एक्चुअली वो जलंधर में उनके रिलेटिव रहते थे, तो वो यहाँ पे आए थे, उनकी रेफरेंस से वो हमारे पास आए ट्रीटमेंट के लिए। ओके। तो उन्होंने भी हमसे कंसल्टेशन ली, फिर फोन पे भी बात करते रहते थे। Must have been a big moment. ये बहुत पुरानी बात है, And early on, तब शुरू किया होगा। 20 years back। Wow. फिर हमारे अकाल तख्त श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब है ज्ञानी गुरबचन सिंह जी, Okay. वो भी ऐसी सीधे ही क्लिनिक में आ गए। जी। उनके साथ तो गार्ड्स बहुत थे, तो वो सीधे आके उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। ही वाज कंप्लीटली सेटिस्फाइड। उनको नेजल एलर्जी की प्रॉब्लम थी। सिंगर्स बहुत आते हैं हमारे पास, बिकॉज वो दे कांट अफोर्ड टू हैव दैट होर्स वॉइस, सो वो बहुत आते हैं क्योंकि दे वांट टू कीप देयर थ्रोट लाइक। अच्छा, बड़ी मजेदार बात है कि वो जब भी अब ठीक हो चुके हैं, 7-8 महीने ट्रीटमेंट चला था शायद उनका, मेरे को याद नहीं है। वो पटियाला जाते हैं ना अपने हेडक्वार्टर या कहीं, तो रास्ते में कई बार मिलने मेरे को रुक जाते हैं। ओके। तो फिर मेरे से बातें शातें करके फिर जाते हैं आगे के घर। अब तो नहीं है, पहले वो थे। राइट। ठीक है। इससे कई लोग, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे लिए तो पेशेंट जो ठीक हो जाता है ना, वो हमारा सेलिब्रिटी होता है। राइट कि जो पेशेंट ठीक हुआ, उसने हमें यार रात को आज अच्छी नींद देनी है, तो हम सारा दिन खुश रहेंगे उससे कि पेशेंट ठीक हो गया, जा रहा।
Right. अब हम end में we have this fun science or scam section. We do that in every podcast where I'm going to say a statement. आपको बताना है वो उसमें science है कि नहीं है. अगर science है, you just say science, and नहीं तो you say scam. कि it's just a myth. लोग बोलते हैं but there's no reality behind it. तो आप scam बोल देंगे. We'll do it quick. जो जैसे ही answers आते हैं, you can quickly. We'll do it with you, Dr. Harveen. Done. Ayurveda can cure diseases like cancer. Science or scam? Scam. Because Ayurveda can act as an adjuvant. जो आपको कैंसर के लिए ट्रीटमेंट मिल रहा है उसके साथ एडजुवेंट की तरह काम कर सकता है ताकि कैंसर के ट्रीटमेंट को हम बेटर हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर सके रादर देन हम कैंसर के ट्रीटमेंट की जगह ही आयुर्वेदा की वजह से अपना टाइम और डिले कर दें. राइट. अगर आपका विटामिन सी लो है सो एलर्जीज गेट मोर प्रोन. यस इट्स ट्रू. इट्स साइंस. ओके. आयुर्वेदिक मेडिसिन गर्म होती है, उसको खा के बॉडी में गर्मी आती है. आयुर्वेदिक मेडिसिन बिल्कुल गर्म नहीं होती. पूरे 12 महीने तक सारे सीजन्स में आप ले सकते हो अगर आप एक लाइसेंस्ड ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड डॉक्टर से ले रहे हो. ओके. आयुर्वेदा एंड एलोपैथी इकट्ठे नहीं ले सकते. साइंस और इट्स स्कैम. अगेन अ स्कैम. एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर, अगर आपका डॉक्टर रजिस्टर्ड है दोनों एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक तो वो कोई भी आपको ऐसी डोज नहीं देंगे जिसका आपकी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट हो. दे कैन बी टेकन टुगेदर. आयुर्वेदा इज एक्सपेंसिव. आयुर्वेदा इज नॉट एक्सपेंसिव बिकॉज आयुर्वेदा आपको रूट कॉज से क्योर कर रहा है. तो लाइफ लॉन्ग एक मेडिसिन खाते रहने से अच्छा है कि आप 2-3 महीने एक बार खर्चा करके उसका इलाज कराएं एंड ठीक हो जाए. सो इन द लॉन्ग टर्म आयुर्वेदा इज नॉट एक्सपेंसिव. Right. Chamanprash is actually good for immunity, or it is just full of sugar and just makes it worse. It is very good for immunity, but it definitely has a lot of sugar in it. So that is how Allergy Raksha Kavle was made. It has all the herbs but less of sugar. So it also acts on allergies and respiratory symptoms just like Chyawanprash. But sugar is definitely not helping anybody in Chyawanprash. It has got all the herbs but even worse amounts of sugar in it. But can you eat it? Is the taste allergy Raksha Kavle's Yeah, taste? Allergy Rakshak taste is good. It has honey in it. It has Acha, it honey has in honey. yes. Okay, then. Plus, it has got all those herbs which are required in the body for allergies and respiratory ailments. Okay, so next one is water from copper bottle. If you drink that, it actually helps you with your gut. Yeah, water in copper bottle helps for gut disturbances, but if that water is kept for a very long time, it can become toxic because then those trace minerals are required in a very small quantity. अगर हम ज़्यादा देर के लिए पानी को उसमें रखेंगे या हम कोई एसिडिक जूसेस या एसिडिक ड्रिंक्स उस कॉपर बॉटल में रखेंगे तो वो टॉक्सिसिटी भी कॉज करेगा. Right. Periods के टाइम पे गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए. Science or That scam? is absolutely true. हमें नहीं खानी चाहिए पीरियड्स के टाइम पे गर्म चीजें बिकॉज उस टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है कि हमें ब्लोटिंग एसिडिटी सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं. सो हमें उस टाइम पे लाइट कुक्ड होममेड फूड ज्यादा प्रेफर करना चाहिए सो दैट वी फील बेटर ड्यूरिंग पीरियड्स एंड हमारी बॉडी भी रिलैक्स्ड रहे. हमें नहीं खाने चाहिए गर्म चीजें पीरियड्स के टाइम पे. Because digestive fire is also very low in those days. So we cannot digest very heavy things. So तब light food ही जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस रखने में हेल्प करेगा. Right. And then आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. मेडिसिन कोई भी हो अगर वो एक्टिव मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट हो सकता है. अगर आप रजिस्टर्ड डॉक्टर से ले रहे हैं आयुष सर्टिफाइड डॉक्टर से ले रहे हैं तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स एज कम्पेयर टू एलोपैथी कम होते हैं बिकॉज ये ज्यादा हर्ब बेस्ड हैं. इसमें कोई केमिकल्स ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं होते. सो इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं. Okay. या ना के बराबर होते हैं. Ras Aushadhi is made from heavy metal components and is inherently unsafe. रस औषधि is definitely made from heavy metal components, but उसका पूरा शोधन करके उसको बनाया जाता है. एंड अगर आपकी कंपनी जहाँ से वो ले रहे हो वो GMP सर्टिफाइड है, आयुष सर्टिफाइड आपकी लैब है तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. देखिए हम जब भी हम मेटल या रस औषधि हमने बनानी होती है तो हम उसका लैब टेस्ट रिपोर्ट लेते हैं. उस बैच का लैब टेस्ट करवा के कि जो जहाँ से मैन्युफैक्चर हुई है
तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसमें उसके बाद उसमें कोई मेटल रेजिडुअल तो नहीं रह गया। ये टेस्ट करने के बाद ही हम यूज करते हैं। तो ऐसे नहीं कि उसको ऐसे ही लेके यूज कर दिया। तो वी कैनट प्ले विद द लाइव्स ऑफ द पीपल। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जहाँ हम एक लोगों को मेडिसिन दे रहे हैं तो हम ऐसी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। Right. रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट जो हमारा बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि मेडिसिन की वजह से कोई साइड इफेक्ट हो जाए। इसलिए Right. क्लिनिकली बैक्ड कंपनी से प्रोडक्ट्स लेना इज सेफर एज कंपेयर टू एनी अदर कंपनी। As from last 30 years we are working, तो हमने देखा है कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज जो ये रस औषधियां बेचती हैं उनके कॉस्ट ज्यादा है, महंगे हैं, लेकिन वो प्योरिटी के मामले में बहुत परफेक्ट है। कोई चांस नहीं है कि इनमें कोई ऐसा अशुद्धि जो उसमें हो कुछ भी है। So when you started Arogyam, did you have all these things in mind? यही पेन पॉइंट था कि किसी और पेन पॉइंट, किसी और रीजन की वजह से आरोग्यम को स्टार्ट किया गया था? सो आरोग्यम में जैसे ही हमने पेशेंट्स देखने शुरू किए, हमने देखा कि हमारा जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट जो आयुर्वेदा में हमारे एलर्जीज के, रेस्पिरेटरी एलर्जीज, स्किन एलर्जीज, फूड एलर्जीज के पेशेंट्स की रिपीट रेशियो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड दे आर कमिंग बैक। अब इसमें हुआ ये था कि मैं खुद ही, जैसे आपने बताया, आई वाज माई सेल्फ अ पेशेंट ऑफ एलर्जी ever since like my childhood. I used to get up with a bad sinusitis. So मेरे फादर मुझे डॉक्टर्स के पास लेके जाते थे एंड वो हमेशा ये बोलते थे शी नीड्स अ सर्जरी। सो बाय द एज ऑफ 16 आई गॉट अ सर्जरी डन। सो बट इट केम बैक लाइक आफ्टर अ ईयर और सो ऑल माय सिम्टम्स केम बैक। एज सून एज आई जॉइंड आयुर्वेदा, मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले तो अपने लिए ट्रीटमेंट फाइंड आउट करना है। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। सो आई केम टू द कंक्लूजन कि मुझे अपने आप को कैसे बचाना है। मुझे सुबह उठ के नाक में घी डालना है, मुझे ये पर्टिकुलर हर्ब लेना है, ये योग लेना है। मैं अपने आप को आयुर्वेदिक मेडिसिन से ट्रीट करने लग गई। अब वही फॉर्मूला, साथ में मुझे प्राणायाम करना है, नेजल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, वही ट्रीटमेंट हमने विद लिटिल वेरिएशन, बिकॉज ये कस्टमाइज्ड होता है, पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। कईयों को एलर्जिक राइनाइटिस है, कईयों को साइनोसाइटिस है, कईयों को हेडेक है। तो वो ट्रीटमेंट जैसे ही हमने करना शुरू किया, हमारे पास ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। दिस इज हाउ आरोग्यम आयुर्वेदा in the field of allergies it gained recognition and popularity. And we even presented, as you know, our work in British Parliament also. And then we've presented so many researches because we've done a good chunk of work on allergies. And we are very proud of the fact that we are able to deliver good results. And I think it started with my own passion to treat my own allergies. Right. Yeah. And now I think you have an institute also, so you are educating so many other people Yes, with the knowledge that you have. Yes, So yes, can we also we- talk about Arogyam Institute Yes, and what we you're are doing teaching there? around more than 900 or 1000 students every month from just 2 rooms. Wow. With technology, like we are getting जो students from all over the world. So हम लोग आरोग्यम आयुर्वेदा में हम लोगों ने एक गैप देखा कि जो हमारे पेशेंट्स हैं वो न्यूट्रिशन के मामले में अवेयर नहीं है। सो वी स्टार्टेड गिविंग देम नॉलेज ऑन न्यूट्रिशन। जैसे न्यूट्रिशन की नॉलेज देनी शुरू की, वी स्टार्टेड कमिंग अप विद कोर्सेज जो न्यूट्रिशन से बेस्ड थे। हमने देखा कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमने देखा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं दे वांट न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेदा की नॉलेज इकट्ठी। वो आयुर्वेदा भी सीखना चाहते थे। दिस इज हाउ आयुर्वेदिक डाइट एंड न्यूट्रिशन was developed as a course. लोगों ने बहुत होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया। दिस इज एन इंटरैक्टिव कोर्स जिसमें रोज क्लासेस होती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं ऑनलाइन। हमारे टीचर्स ज्यादातर पीएचडी या अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं। वो हम उनको आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन के बारे में साइड बाय साइड हम उनको नॉलेज देते हैं। एंड हमारे पास वी कैन प्राउडली से वी हैव अबाउट 30K स्टूडेंट्स, 30,000 स्टूडेंट्स जिनको हम अब तक टीच कर चुके हैं आरोग्यम इंस्टीट्यूट में। एंड आरोग्यम इंस्टीट्यूट की 4.8 स्टार रेटिंग है। The best rating in the world हेल्थ के ऑनलाइन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट जो है उसकी हमारी है आरोग्यम इंस्टीट्यूट। So where are these courses? They're on your website? No, live interactive courses. So where do you host them? Zoom. Zoom call. So I'm- like somebody wants to enroll, let's say, what is the process?
So if somebody wants to enroll, they call our team. We have a back-end team here in Gurgaon. Arogyam Institute and Gurgaon also. Then they call us, and then we tell them about our courses. Then a session or a batch is formed, wherein the teacher and the students, they come online on Zoom sessions, Okay. and then we teach them for 1 month, and we have interactive classes also. Every day is an interactive class, but then we have a question round and test also are given to them. So फिर उसके बाद हमने मेंटल हेल्थ काउंसलिंग कोर्स शुरू किया, जिसमें हमने देखा कि मेंटल वेलनेस में बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, एंड बहुत सारे लोग, बिकॉज हमारी इतनी अच्छी रेटिंग थी, स्टूडेंट्स वर सो हैप्पी. अभी भी आके कई लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से, दे especially come to meet us कि आपने इतना अच्छा हमें कोर्स कराया. They are really happy with us. And mental health counseling के बाद हमने योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया. योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स वगैरह योगा अलायंस से accredited कोर्सेज हैं हमारे, so that our students यहाँ से जाके बाहर भी अपना योगा किसी भी के कंट्री में कर जाके सकते वो हैं. प्रैक्टिस कर सकते हैं, योगा सिखा सकते हैं लोगों को. That's great. So ये सारे कोर्सेज हमारे आरोग्यम इंस्टीट्यूट में हम लोग कंडक्ट करें. The best part of Arogyam Ayurveda is that it is accredited with the Ministry of Ayush. It is accredited with CPD, Yoga Alliance, AICC, which is an accreditation body started by Arogyam Institute itself. Wow. Yeah. So this is doing well. Lot of healthcare professionals, Ayurvedic doctors, allopathic doctors, and gym enthusiasts, health counselors, and Even homemakers are doing. homemakers are nowadays doing this course because they want to educate their They want family. recognition. They want to earn money. So they are doing. 50% of our clients are homemakers, ladies. So we were talking about how, so you were sharing that there's so many students who are actually from outside of India. Can we talk about which countries they're coming from? Most prominent is Dubai, Arab countries mostly, Okay. and Europe. ठीक है, तो आयुर्वेदा का क्रेज वहां पे भी बहुत ज्यादा है. आयुर्वेदा का क्रेज तो पूरे वर्ल्ड में अभी है, बिकॉज पहले योगा गया हर घर में, वर्ल्ड के हर घर में योगा है इस टाइम. योगा के बाद आयुर्वेद. So are you also teaching on that institute, or No, you're just I'm not managing? teaching. No, we Okay. are just managing. We have Okay. very good faculty. हमारी faculty पूरे इंडिया में spread है. ज़्यादातर PhD, as I told you, and MD doctors and Ayurvedic MD doctors हमारे सारे जगह पे हैं, and बहुत अच्छी interactive classes लगती हैं. Let's talk about the institute. You have students, they're getting trained. What is the duration of the courses that they're typically getting? So 1 month कोर्स भी है आयुर्वेदिक डाइट एंड न्यूट्रिशन पे, फिर 3 months का भी है, 6 months का भी है. हम इंटर्नशिप करा के 1 year का पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी करा रहे हैं. Okay. सेम इज द केस विद मेंटल हेल्थ काउंसलिंग. बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग जो 1 month का कोर्स करते हैं, दे गो अप टू 1 year बिकॉज दे लाइक इट सो मच. And then they can practice, they have the right. Yes, they can practice. बहुत सारे Certification. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्राइवेट ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, काउंसलिंग क्लासेस. बहुत सारे अपने डाइट चार्ट्स, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स बने हुए हैं. बहुत सारों ने मल्टीनेशनल कंपनीज भी ज्वाइन की हुई हैं. एंड बहुत सारे जो, जैसे क्योंकि कंपनीज में दे नीड न्यूट्रिशनिस्ट नाउडेज, सो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करें, अपने हेल्थ सेंटर्स, अपने ऑनलाइन कोचिंग. सो हम तो इस बात पे ज्यादा खुश होते हैं कि वी आर नॉट लाइक वर्किंग ऑन गिविंग like this number of certificates. We are working on building those kind of lives who can transform other people's lives. So जो बाकी लोगों की lives पे अच्छा इफेक्ट करें, न्यूट्रिशन का वर्ड, आयुर्वेदा का वर्ड सबकी तरफ स्प्रेड करें, उनको काउंसिल कर पाए. This is the way we are working in Arogyam Institute. And are you helping them with placements also right after Yes, they we do finish? help them. We do guide them about placements as well. Do you also hire them at Arogyam Yes, after? we do. Yeah. We have so many people working with us. And how long back did you start this? We started this in 2021. Okay. And it's done really well. It was during the time of COVID when everybody wanted to study and gain, upskill their like knowledge. Right. Yes. Right. And anything else like this is happening in Punjab that you're aware of? ऐसे institutes Punjab में और हैं कोई? No, It's, I don't think everybody is selling like ready-made courses which are like one course for all. This is not like this. This is for like each student has their own questions. So our teachers come up with the right answers, and
we actually want them to learn Ayurveda and nutrition both, which is lacking in our study system also. Right. So in the end, I would just like to talk about the future of Ayurveda. Do you think that, जैसे मैंने beginning में बात की कि our generation is a little hesitant about this field? Do you think that is changing? कि that should change via this podcast? Do you want to share any thoughts on that? ये अभी टाइम जो है ना, सभी लोग फूड सप्लीमेंट्स पे जा रहे हैं। किसी में विटामिन डी की कमी है तो वो विटामिन डी ले रहा है। तो ये सारे सप्लीमेंट्स जो ले रहे हैं लोग, अभी फूड सप्लीमेंट्स का टाइम है। तो फूड सप्लीमेंट इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं ओवर यूज से। दूसरा, हम अपनी बॉडी को एक तरह से इग्नोर कर रहे हैं कि बॉडी अगर नहीं विटामिन डी बना रही तो हम बाहर से ले रहे हैं। क्यों? बॉडी पे काम क्यों नहीं करते कि बॉडी खुद विटामिन डी पूरी बनाए? तो उसके लिए डाइट चेंजेस, उसके लिए जो जो चीज चाहिए वो क्यों नहीं करते? तो आयुर्वेदा हेल्प्स इन दैट। आयुर्वेदा खुद विटामिन डी नहीं देता। आयुर्वेदा बॉडी को विटामिन डी खुद सिंथेसाइज करने के लिए हम हर्ब्स देते हैं, जैसे कि बॉडी खुद विटामिन डी सिंथेसिस करती है। तो आने वाला टाइम इसलिए आयुर्वेदा का बहुत ज्यादा बढ़िया आने वाला है, बिकॉज लोग थक चुके हैं ये फूड सप्लीमेंट आर्टिफिशियल चीजें ले लेके। सो पीपल वांट नाउ कि नेचुरल लाइफ जी जाए, नेचुरली फियर लेस लाइफ जी जाए कि हमें कोई बीमारी होगी भी। तो आयुर्वेदा का इन फ्यूचर पूरी अमेरिका में इसका प्रचलन बहुत ज्यादा हो रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि अमेरिका जितनी सेल करक्यूमिन एक हमारे यहाँ पे जिसको हल्दी बोलते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट करक्यूमिन होता है। वो उसके ऊपर एक रिसर्च आई कि इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी, ये कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। इस रिसर्च में पाया गया। तो ये बिलियंस में बिक रही है पूरे अमेरिका में करक्यूमिन, टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में। बट एक और रिसर्च भी आई थी जिसमें हमारे स्पाइसेस में इट वाज एक्चुअली कार्सिनोजेनिक। देखो, वो तो कंपनी स्पाइसेस एक्चुअली आर नॉट कार्सिनोजेनिक, बट द कंपनीज दैट वी आर ऑल टेकिंग इट फ्रॉम, एडल्ट्रेशन यस, तो किसी भी चीज में हो। आप मतलब आयुर्वेद में कर दो, आप किसी भी फूड में कर दो, अच्छे फूड में अडल्ट्रेशन करो तो उसका तो बैड इफेक्ट तो होगा ही ना बॉडी पे। तो एक अलग वो मसालों के लिए मसालों के लिए, बिकॉज हाँ। दे एडिंग सो मेनी दिस आर्टिफिशियल थिंग्स कि वो स्पाइसेस जो बेटरमेंट करते थे वो साइड इफेक्ट्स दे रहे हैं, कार्सिनोजेनिक हो गए हैं ये। right. So your last message that you would like to give through this podcast to the people who are watching? आई वुड से अगर आपकी प्रॉब्लम अगर शुरू हुई है, अगर बेसिक आप अभी लाइक डू नॉट स्विच ओवर टू एलोपैथिक मेडिसिन वेरी सून, ट्राई आयुर्वेदा एज वेल, बिकॉज आयुर्वेदिक मेडिसिन आपकी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी डाइजेशन, अग्नि, इम्यूनिटी, सारी चीज़ों को, प्रकृति को, दोषास को सामने रखते हुए ट्रीटमेंट करती है। सो आई वुड से कि आप पहले आयुर्वेदिक मेडिसिन पे आएँ, अपनी हर्ब्स के साथ, अपने नेचुरल जो हमारे शुरू से हमारे एंसेस्टर्स भी लेते आए हैं उन ट्रीटमेंट्स के साथ अपने आप को सही करें। बट बोथ एलोपैथी एंड आयुर्वेदा आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जहाँ पे एलोपैथी की जरूरत है उसको अडॉप्ट करें, बट अपनी बॉडी को इतना वल्नरेबल ना कर दें कि आपके ऊपर आयुर्वेदा का असर होना ही बंद हो जाए। Right. Sounds good. Thank you for giving us a new, fresh perspective, especially to the younger generation that's watching. Ki there is something that we're leaving behind that comes from our roots, but we shouldn't. There is so much value to be taken out of it, especially as we talked about in the beginning, the stressful lives that we're living. I think Ayurveda can make a very meaningful impact in that. So great conversation. Thank you, very Dr. Satnam and Dr. Harveen, Thank for you being so a much, Kathy. part of this podcast. We had a lovely conversation and we learned Thank you so very much. much. Thank We you. enjoyed Thank doing you. this podcast with you because Thank it you. is always like a pleasure meeting you Yeah, and discussing everything likewise. which you have seen us working in Ayurveda Arogyam as well. Yes. Thank you. Thank you Thank very you much, so Kathy. much. Thank you.